You're very right, Mrs. Butler. They cannot, even after making persistent efforts, move ahead with the task of teaching the women folk. So, all of us here have decided that we will send women as missionaries for the said task. I would request the women here to suggest as well as share their interest for the cause. This is very apt, Mrs. Parker. We have heard that the men in India have a strict policy of fair women folk to be in burqa or the compulsion of using a veil. So, I would say that this is a well thought out decision, but I have my own limitations due to which I would not be able to go. I would suggest someone who does not have any obligations to be the one who should go. Seems fine. We need two women, one for the teaching and the other for our healing ministry. So, is there anyone in this meeting who is interested in serving as a missionary? My brother is a missionary himself, and I have conversed with him in detail regarding the requirement of a female mission. I have always thought of making myself useful for the cause of the education of Indian women. I would also like to serve for the cause of healing ministry. I would like to be of use to the sick and the weary, and in doing so, I will bring hope to the people who have lost all hope. Is it a well thought out decision? Yes, Mrs. Parker. So, to India it is. Prepare yourself for the journey. May God bless you and be with you. Bon voyage. God bless you. Come. I know. It is quite noisy and hot here. With such protection, Isabella was finally experiencing the particulars of her call. It seemed a great mistake to start a school in such a noisy place. But the venture was made on the principle that the best thing possible was always the right thing to do. Within a few weeks, they moved into a vacant room of Dr. Waug's bungalow, a Methodist missionary. And then, at the beginning of the rainy season, to a rented house in Inayatbad. This was left a year later to take possession of the first purchase of the Women's Foreign Missionary Society, a place called Lal Bagh or Ruby Garden, for Indian, Anglo-Asian, Hindu, Mohammedan and Christians alike. The curriculum was widened and a collegiate department was added. Friends, with longer weeks of nursing care. That evening, she entertained happily in honor of a visiting missionary's birthday. At 3 a.m. on Sunday, Chaukidar called Miss Leelavati Singh, who found Miss Thoburn in the siege of cholera, too weak to speak distinctly.
a little before noon on September 1st, 1901, Miss Thoburn expressed her wish that the students would sing her favorite hymn for her. She was released by death. After the death of Miss Thoburn, the college was renamed after its founder as Isabella Thoburn. The Committee of Management and Society for quite some time now. But what I mean, see, many of us take a lot away from the college, but very few of us come back to give. She's one of those few people who came back and gave. She has instituted 3 scholarships in the college, which will be given with effect from this year, and I remain grateful to her. She comes from a very illustrious family. Her father was Acharya Tiwari, who taught at Serampur College, Serampur University, I should say, and her brother was Dr. Ravi Tiwari, who was the registrar in several universities and who passed away last year. Sandhya carries the torch now, and we are happy to have her here, and she will say a few words about herself and about her experience of this college. The college remains grateful to her for what she has done for the college. Thank you. और इस सम्मान के भी जवाब में दिया। अपना ही कॉलेज है, अपने ही लोग हैं, जाना पहचाना रास्ता है, जाने पहचानी बिल्डिंग, सब कुछ अपना है। कुछ भी नहीं भूली मैं कि इस हॉस्टल के पीछे क्या है और उस हॉस्टल के पीछे क्या है। अगर मिस तोबर नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होंगे, ये पक्की बात है। मैं इसमें से किसी भी घटना का वर्णन नहीं कर रही, आपने बहुत सुंदर बता दिया कि वो क्या थी, पर अगर वो नहीं होती तो हम नहीं।
ऊंची शिक्षा नहीं मिली होती हमें, हम अभी भी पर्दे के पीछे होते शायद। बहुत सी लड़कियां। मैं मिस थोबन के साथ साथ डॉक्टर क्लेरा स्मिथ को भी याद करती हूँ, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ, क्योंकि मेरा जुड़ाव थोबन फैमिली से है। बाद में बताऊंगी कैसे। और जन्म मेरा क्लेरा स्मिथ में, तो अस्तित्व देने वाली क्लेरा स्मिथ ने इस जिस्म को दिया और आगे की शिक्षा मिस थोबन ने, IT ने। और यही बात नहीं होती, कैलकाटा के थोबन चर्च में मेरा विवाह हुआ, तो ये तीसरी घटना थी। और अभी और बताऊंगी कि थोबन परिवार की तीसरी जनरेशन के साथ हमारा जुड़ाव, वही नहीं की बात उन दिनों की है जब मेरे पिता डॉक्टर तिवारी बाइबल सोसाइटी में थे, और बाइबल सोसाइटी में ग्रीक भाषा से हिंदी में न्यू टेस्टमेंट का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो वो एक जन नहीं करता है, वो टीम होती है, और उस टीम में बहुत से विद्वान थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे और लैंग्वेज को जानने वाले विद्वान भी थे। और जब वहाँ उन लोगों में से एक खास थे डॉक्टर स्टैनली थोबन, वो मिस थोबन के भतीजे के बेटे थे, मतलब के पोते थे, मिस थोबन के पोते थे, ग्रैंड नेफ्यू कहेंगे उन्हें। वो भी बहुत नेक और मेरे पिता के बहुत अच्छे मित्र थे। घर अक्सर आना जाना होता था, बैठ के गप्पें होती थी, हम उनके यहाँ जाया करते थे, और वो अक्सर बोला करते थे जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाए तो उसको IT कॉलेज में ज़रूर भेजना। और जब मैं बड़ी हुई उस समय पापा ने कह दिया कि तुम अपनी बुआ दादी के कॉलेज का प्रचार कर रहे हो, मेरा मन आएगा जब हम वहाँ मैं भेजूंगा, पर उन्होंने मुझे यहीं भेजा। 1970 में 1970 में मैं IT में आई, और IT उस समय 100 वर्ष का हो गया, सेंचुरी ईयर था। एक खासियत हमें आपको बता दूं, मैंने IT में ओरिएंटेशन से लेकर यहाँ से विदा होने तक बहुत कुछ सीखा। मैनर्स सीखे, सबसे बड़ी बात टेबल मैनर्स हमें नहीं आते थे, बहुत सी चीज़ें। कुर्सियाँ खसकाया करते थे आवाज़ से, बोला जाता था नहीं उठाओ, चेयर्स उठाओ, ब्रेक मत करो। बहुत छोटी छोटी बातें हमने, ये हमारे संस्कारों की पाठशाला IT कॉलेज, जिसमें व्यवहार करना सीखा। और जैसे नेपोलियन ने कहा था, गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। IT ने बहुत अच्छी माएँ दी हैं, और बहुत से अच्छे लीडर्स दिए हैं, अभिनेत्रियां दी हैं, समाज सेविकाएं दी, बहुत कुछ दिया है, और आगे भी IT देगा। मुझे अपने टीचर्स भी याद है, उस समय डॉक्टर शिप्सन यहाँ की प्रिंसिपल हुआ करती थी, वार्डन्स भी याद है, डॉक्टर कॉफी निशाद की वार्डन हुआ करती थी,
नौनिहाल की मिस फ्रैंकलिन होती थी, और उधर क्या है, मैत्री की मिस अहमद हुआ करती थी। अपनी बीए की भी टीचर्स याद हैं और अपने बीएड की टीचर याद हैं। और मैं आपसे कहती हूँ, आप यहाँ से चले भी जाओगे, मुझे 50 साल से ऊपर है, पर मुझे वो टीचर्स सब आप भी याद करोगे, आप भी इसका पुनः याद करोगे, इसका चैपल याद करोगे जहाँ हम 2 बार जाया करते हैं, सुबह और शाम। आईटी कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है, आपसे हमेशा याद, आपके नस नस में बस जाएगा ये कॉलेज। अब बताती हूँ आपको सेंचुरी टाइम का, यहाँ बहुत उत्साह था, वो शताब्दी है तो कॉलेज को सजना है, बनना है। 2 बातें मुझे बस याद हैं, एक तो झांकी जो लाल बाग से चली, हजरतगंज के रास्ते से आई, यूनिवर्सिटी के रास्ते से आई और आईटी पहुंची। उसमें क्या होगा, क्योंकि वो होगा 10 पिलर्स डे। फिर डांस और ड्रामा, ये डांस और ड्रामा एक कैथलिक फादर थे, फादर क्लॉक्स, उन्होंने तैयार कराया था। और डांस और ड्रामा है तो क्वायर नहीं है, ये हो नहीं सकता। और उन्होंने क्रिएशन से क्रिसमस तक का पूरा दृश्य डांस और ड्रामा के रूप में दिखाया था। और जो गाने लिखे वो इतने सुंदर, वो अकेले तो नहीं आए थे, उनकी भी टीम हुआ करती थी, बहुत बड़ी टीम थी, उसे लेकर आए और उन्होंने हम लोगों को, मैं क्वायर में थी, उन्होंने गाने सिखाए और एक से बढ़कर एक उन सारे गानों में आईटी कॉलेज के वैल्यूज का जिक्र था। एक गाने की कुछ पंक्तियां मैं आपको, कुछ लाइनें बोलती हूँ। हे दैवी उपहार प्रदाता, ईश्वर के लिए है, ये प्रार्थना है। नहीं प्रार्थना क्षुद्र वस्तु की, क्षुद्र कहते हैं छोटी, छोटी चीजों के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रही या कर रही। क्षुद्र नहीं प्रार्थना क्षुद्र वस्तु की, मैं अनंत को ध्याता, अनंत ईश्वर की ओर ध्यान लगाना, मैं तो ईश्वर की ओर ध्यान लगाऊं, मैं झुका रहा माता, ये मेरी प्रार्थना। अब ये उम्र नहीं रह गई कि गाँव से, पर कितने सुंदर मैं चाहती थी कि क्रिसमस से होती तो उनको 2 लाइन सिखा देती, वो गा देती है ना, तो और अच्छा रहता। पर ये बहुत सुंदर गाना है कॉलेज के, ये लिखा हुआ है कॉलेज में, तो कॉलेज का गाना है, कॉलेज की प्रार्थना, और ये आपके कॉलेज को समर्पित है। Nothing more to say, but definitely I'll share with students, you are blessed being here as a student, and I must say, give your 100%. You are here to study, to learn so much of things, all the etiquettes, everything, I mean, for the world, जो दुनिया बाहर की है उसके लिए, for the empowerment, for everything. You are here, you are learning everything. I know you must have many exposures, all the type of exposures you must be having. So please learn each and everything. Give your 100% and you will shine like anything. This is all I want to say. And yes, we receive to give. So it is all there in our heart. Somewhere we have learned, and now blessed with the
supreme power that yes, अब हम उस लायक हो चुके हैं कि कुछ सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, and we have learned it from here. Definitely, it's there in our heart now. So thank you IT College, thank you ma'am, Charles ma'am, Banji ma'am, and all the teachers here. It's my gratitude to the college and to all the faculties and teachers here. My classmates are here, Neerja, Parish. We have spent beautiful time here. Please enjoy the time. This will not come again. Yes. College Founders Day to one and all. I extend my appreciation to the choir for having given me the opening line of my talk with the students today. O Savior, I pray, make me a blessing for someone today. Dr. Paul Matthew, thank you very much for initiating this very honored morning for me, and I was really admiring your very mic-fitting voice. Dr. Chitra, thank you for sending me that message and inviting me here today. Dr. Charles, you've been my mentor and an inspiration for more than 3 decades. Dr. Bansi, thank you for being a personal friend, a guide, a story to you. And I'd like you all to close your eyes and visualize this. Maybe we'll hear some sounds of snoring. Please close your eyes. Imagine a jar, एक jar, जिसमें बहुत सारे crabs हैं. Imagine a jar full of crabs. It's a big jar. Crabs, केकड़े, बहुत छोटे छोटे. They're in the jar. नीचे. They're at the bottom of the jar. For some time, the crabs are chilled out at the bottom of the jar. No attending classes, no examination, no work, no mummy papa scoldings. बड़े मजे में crabs jar में relax कर रहे हैं, chill out कर रहे हैं. But of course, as is nature of living beings, you can't stay confined in one place for very long. So these crabs in the jar started to fret. What do you think the other crabs would be doing, seeing these couple of few crabs trying to escape the jar? आपको इस vision में क्या दिखता है? Can anyone just speak aloud and tell me, what do you think the other crabs would do to their friend who's trying to escape or go out or reach heights in that jar? Anyone? What do you see? Can you share with me? Anyone? Okay. Somebody is trying, failing again and again, maybe slipping down that jar. आपने ये देखा? Okay. जैसे वो King Bruce का spider, try again. Okay, they are trying. I'm asking, what do the other crabs do when one of them is trying? Good afternoon, everyone. They will try to pull the crab down. The other crabs were trying to pull the crab down. And you know what? Sadly, that is the story of human life all around us. Ab kuch bhi out of the box thinking karenge, trying to get out of the jar, climbing heights. There will be a lot of forces pulling you down, and that's what we call the crab mentality. Thank you very much. My message to all the young girls, the educated minds of today, who are the hope for the future, is stay away from that crab mentality. For all the people and the forces that try to pull you down, even if you have to kick them away, but keep climbing. Reach for the stars. You may
always get one, but you won't come up with a handful of dust either. I remain forever indebted to IT College. My best wishes to all those who are associated with this wonderful institution. Thank you very much. Rise high, all the best. Thank you. To stand here. Good afternoon, respected President, ma'am, esteemed teachers. Bit nervous, excited to be here because I am from 2003, first batch of MSc, and I spent 7 years in the college, entered it as a young girl in class 11th and finished the post-graduation and left in 2003. And as Sandhya ma'am said, that when you enter college and during the orientation, that's when they inculcate a lot of discipline and independence. So I stand here as an independent woman, having around 20 years of experience, blah, 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 and I graduated, I completed in 2003 June, and today is 2024, exactly 21 years back, and it is said that if कोई भी चीज़ ना 21 दिन तक कर ले तो आदत पड़ जाती है. So imagine I have been living in this college for last 21 years, day in and day out, thanking for each and every interaction that I have with people. So what this college gave me, this college gave me 3 Ds, that is discipline. Discipline of not going out before 12, and that has helped in many ways, not just, it's not a joke only. It gave me determination to do things with a lot of integrity and put in the hard work. It has given me wings and has shown me path to dream. So any dream is not small. If you are from IT college, as Poonam said, that when people see IT college, you are selected. Why you are selected? Why? Because there is a legacy, and we all have to carry it forward. Starting from Sandhya ma'am and many who came before her, they paved a path that shows that IT college की लड़कियाँ अच्छी होती हैं, disciplined होती हैं, they are well mannered, and so many adjectives are there that we are carrying with us as a pleasant weight that we should be carrying. So my days were the best days, like anybody else's. बैठना अच्छा नहीं लगता था, बहुत से लोगों को शायद आज भी अच्छा नहीं लग रहा होगा या क्लास बंक करके बैठ गए होंगे यहाँ पर. ये सब होता है, but when you step out of the college, you know, you are honored and then you think, कहाँ पे थे, कहाँ से आ गए. So always remember, you can move out of college. किसी भी लड़की को कोई भी IT college से निकाल सकता है, but you just can't take IT college from the girl. It stays there in the discipline, in the way we carry ourselves, in the manners, in the way we move, and one thing is most important, the motto that we receive to give. I got so many things from the college and I'm giving. I've coached more than 2,000 people and I've coached more than 500 people to become fit. So I'm also a fitness coach. And remember, to give something to somebody, you need to fill your cup. You can't go from an empty cup. So get whatever you can. जो भी काम बोलते हैं, जो भी homework मिलते हैं, the timelines, everything that's happening here, take it religiously, follow it, and you'll fly high. And just make us proud. Thank you so much, Chitra ma'am, for inviting me. Now from morning, it's afternoon. So good afternoon, everyone, especially our President and Dr. Charles, and all the guests and students, faculty, who is always focused on some points of our founder, Ms. Kogan. But I was reading a book on her. I came to know some beautiful passages in that book, and I wrote for my message today. And I would like to read these lines, especially for our students, to pay attention and
and try to follow. It was not always thus, for no college less promising birth. This one began with 6 small girls in a one room, as we have seen in the presentation also. On a dusty room, but the prayer of dedication for the very important roles in life of their daughter or their daughters. They are the first teachers who give lessons to their daughters. And the same was done by Miss Thoburn, mother also. Mrs. Thoburn mingled love and common sense with discipline. हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आईटी कॉलेज सोसाइटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर एलिजाबेथ चार्ल्स। मैम, हमें आपका बहुत स्वागत है। अगर बात करें इतिहास की आईटी कॉलेज के, तो क्या कुछ इतिहास है? आईटी कॉलेज और इजाबेला थोबन कॉलेज शुरू किया गया था एज अ स्कूल इन 1870 और उसके बाद वो ग्रो किया और 1886 में वो एक कॉलेज बना और कैलकाटा यूनिवर्सिटी से तब एफिलिएटेड था, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तब खुले नहीं थे। और वहाँ से 11 लड़कियों के साथ उन्होंने शुरुआत की। 1922 में इस कैंपस पे आए जहाँ पे हम आजकल हैं, और यहाँ पे 11 लड़कियों के साथ आईटी कॉलेज की शुरुआत हुई। और ये फर्स्ट क्रिश्चियन विमेंस कॉलेज है इन साउथ ईस्ट एशिया। एक ग्रुप ऑफ अमेरिकन विमेन मिशनरीज थे जिन्होंने हमारी जो फर्स्ट अपराइजिंग थी इन 1857, उसके बाद उनको पता चला कि औरतों की देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल्स और पढ़ाने के लिए शिक्षा संस्था भी नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में ज़रा पर्दे में रहती थीं औरतें और आदमी लोग पहुंच नहीं पाते थे। तो ये महसूस किया गया कि हमको औरतों को बुलाना होगा इन्हें पढ़ाने के लिए और इनका इलाज कराने के लिए। तो 2 लोग आए, एक तो मिस इजाबेला थोबन और एक डॉक्टर क्लैरा स्वेन। डॉक्टर क्लैरा स्वेन ने बरेली में एक अस्पताल खोला जो पहला विमेंस हॉस्पिटल था नॉर्थ इंडिया में, और मिस इजाबेला थोबन ने ये स्कूल लाल बाग खोला, उसके बाद ये कॉलेज। यहाँ पे इतनी ज़्यादा इनको सक्सेस मिली, एक इतनी खुशी हुई कि औरतें आईं और पढ़ीं, लड़कियाँ आईं और पढ़ीं, और हर धर्म की, हर जात के सब लोग पढ़े। इस प्रोत्साहन के बाद वे लोग चाइना, जापान, कोरिया सब जगह गए और उन्होंने ये इंस्टीट्यूशंस खोले जो कि सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कॉलेज के, जिससे कि इसका रिपल इफ़ेक्ट पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हुआ। और मैं सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जो है पूरा इनिशियली पूरा गिविंग से बना। औरतों ने पैसा जमा किया और औरतों ने औरतों के लिए दिया। जो इसमें एडमायर करने वाली बात है कि जिन औरतों ने पैसा दिया उनके घर से कभी यहाँ कोई पढ़ने नहीं आया। उन्हें पता था कि वो कभी आएंगे भी नहीं, मगर उन्होंने फिर भी दिया ताकि हमारी बहनें उठ सकें, ताकि उन्हें ख्वाब देखने का मौका मिले। दुनिया के हर देश में औरतों की परिस्थिति इम्प्रूवमेंट के लायक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, पर है सब जगह। तो औरतें अपनी परिस्थिति समझती हैं तो दूसरे की परिस्थिति भी समझ सकती हैं। और अगर हम इतना जागरूक हो जाएं कि हम अपनी परिस्थिति और दूसरे की परिस्थिति दोनों समझ सकें, तो मैं सोचती हूँ कि औरतों का बहुत ज़्यादा उत्थान होगा।
इज़ाबेला थॉवन के अगर संघर्ष की बात करते हैं तो किस तरीके से आप उनके उस संघर्ष को देखती हैं? वो ये कि भाई एक तो जात, दूसरा पर्दा, तीसरा पैसा। क्योंकि पैसा यहाँ तो वो कमाई कर नहीं रही थी, जो लोग देते थे उसी से उनका खर्चा पानी चलता था, उसी से स्कूल चलता था, उसी से बहुत से ऑर्फन बच्चे पढ़ते थे, उसी से खान पान, किताब, कपड़ा लत्ता सभी कुछ होता था। कभी पैसा आता था, कभी नहीं आता। एक हमारी हिस्ट्री की किताब है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक दफ़े पैसा ज़रा कम आया तो जो सुबह दूध पिलाते थे सब लोग, और वो भी पीते थे खुद भी, वो पीने के उतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने दूध में पानी मिलाया ताकि फिर भी गिलास पूरा हो, मगर पैसा कम था। पर वक्त के साथ मैं सोचती हूँ हमारा प्रभु जो है हर अच्छे काम को अपने वक्त से पूरा करवाने के लिए हर ज़रूरत को पूरा करता है। तो सो ही कहानी है इस कॉलेज की। कभी ज़्यादा पैसा नहीं, आज भी नहीं, मगर इतना हो जाता है कि हम जो करना चाह रहे हैं वो कर पाएँ। मैम, एक अहम सवाल हो जाता है क्योंकि इज़ाबेला थॉवन की आज बात हम कर रहे हैं। आज के समय में शिक्षा पूरी तरीके से कॉमर्शियल हो चुकी है और उन्होंने कितना संघर्ष किया एक महिला होकर महिला को आगे बढ़ाने का। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, जो तमाम फाउंडर्स हैं तमाम कॉलेजेस के, उनको इज़ाबेला थॉवन से क्या कुछ सीख लेनी चाहिए और गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के लिए और ख़ासतौर महिलाओं के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, अगर इफ़ यू कैन नॉट ट्रांसलेट एजुकेशन इनटू सोशल एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है, ट्रांसलेशन ऑफ एजुकेशन इनटू सोशल एक्शन। जब तक कि ये नहीं होता तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल एजेंट। विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं कर सकते हम, बहुत ज़रूरी है। तो उसको, अब एक टूल है हमारे पास एजुकेशन, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है किसके हाथ में पड़ रहा है ना। तो अब हमें, मेरे ख्याल से सबको जागरूक करना चाहिए कि देखिए, अगर हम अपना देश बदलना चाहते हैं, अगर हम अपनी औरतों की परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, अगर हम अपने आदमियों की मानसिकता बदलना चाहते हैं, तो उसमें एजुकेशन का एक बहुत अहम रोल है। और वो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो रिलेटेबल टू सोसाइटी हो, सोशल एक्शन से रिलेट करे। सिर्फ इम्तिहान नहीं, इम्तिहान में तो सिर्फ शुरू होती है, असल एजुकेशन तो इम्तिहान के दायरे से बाहर है ना। और अक्सर जो होता है कि हम इम्तिहान दे के खुश हो जाते हैं, अच्छे नंबर पा के खुश हो जाते हैं, पर उसके असल जो मायने हैं उस एजुकेशन के, वो कहीं दरी के नीचे दब जाते हैं। पर हमको अगर अपने देश को बदलना है, उसको, उसकी मानसिकता बदलनी है। आजकल जो हर वक्त हम सुनते रहते हैं, अखबार में पढ़ते रहते हैं, वो सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि मानसिकता कहीं पीछे छूट गई। पढ़ाई भले ही आ गई, मगर मानसिकता पीछे पड़ गई। अब आज के पल में हम, वी आर सब्जेक्ट टू ऑल द वर्ल्ड्स परव्यू, है ना, टीवी ने, मूवी ने, मगर हमारी इंटरनल मानसिकता तो अभी अंदर छुपी हुई है, और वो एजुकेट हुई कि नहीं ये हमें नहीं पता। पर जब तक वो नहीं एजुकेट होगी या ट्रांसफॉर्म होगी टू बी एबल टू डिसाइड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, तो हमारी स्थिति कभी नहीं बदल सकती। पुलिस से और रिपोर्ट करने से और पिंक बूथ और फलां, ये इससे हम थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छे एफर्ट है, मगर ट्रू चेंज कम्स फ्रॉम विद इन, है ना। चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, अगर मैं अंदर से नहीं बदलाव के बारे में सोचूंगी तो बाहर कहाँ से एक्शन करूँगी? लिप सर्विस कर दूँगी पर एक्शन नहीं करूँगी। तो हमारे लिए हर इंस्टीट्यूशन में, हर, खाली औरतों को नहीं, आदमियों को भी, क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं और आदमी और औरत साथ ही रहते हैं, और दोनों को इस तरफ, इन प्रॉब्लम्स से जागरूक होना चाहिए। तो ये हमारी डिमांड ऑफ द आवर है फ्रॉम आवर एजुकेशनल सिस्टम, और ये खाली पुलिस से नहीं सॉल्व होगा।
मैम, यहाँ के अगर स्टूडेंट्स की बात करें, जब वो यहाँ की पढ़ाई पूरी करके बाहर जाती हैं, कहा जाता है, कहा ही नहीं जाता है बल्कि ऐसा एक्सपीरियंस भी किया गया है कि काफ़ी सभ्य होती हैं, एथिक्स और एटिकेट्स में अग्रणी होती हैं, शिक्षित तो हैं ही हैं, साथ में सभ्यता का एक पैमाना है वो एक सेट करती हैं दुनिया के लिए। ऐसा क्या शिक्षा नीति है आपकी और किस तरीके से उनको आप सिखाते हैं, क्या कुछ इनिशिएटिव लेते हैं आप? देखिए, हम ये मानते हैं कि वन हैज़ टू लिव बाय एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई फॉलो करे, तो आपका अपना चरित्र और अपना सोच ऐसा होना चाहिए कि दूसरा आपको फॉलो करे। हम जो सबसे बड़ी कमी हो जाती है, किसी भी इंसान में हो सकती है, कि हम ये भूल जाते हैं। तो हमारे को कॉलेज में आचरण, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे सब शिक्षक और हम, बिगनिंग विद मी, कि हम अपने आचरण ऐसे रखें कि बच्चे उनको अपनाएं, उनको समझें, उनको मान दें। आप अपनी सोच किसी पे आज की तारीख में थोप नहीं सकते। वो उनको रिकग्नाइज़ करके खुद मोटिवेट होना है कि वो फॉलो कर सकें। जब तक हमारी अपनी पर्सोना मोटिवेशनल नहीं होगा, मुँह जो बोल रहे हैं वो नहीं, मोटिवेशनल स्पीच तो हर कोई देता है आजकल। मैंने देखा है, जिसको देखो वो मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने बोला और चले गए, बात ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म। पर हमारा अपना पर्सोना ऐसा होना है कि जो मोटिवेट हो वो उसको फॉलो करे। तो हम कोशिश करते हैं कि कॉलेज में वो चीज़ हो। थोड़ी सख्ती रखते हैं, बहुत दफ़े माँ बाप नाराज़ भी हो जाते हैं जब हम सख्ती करते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं जब हम सख्ती करते हैं। पर हर चीज़ का नियम, नियम एंड डिसिप्लिन, दो चीज़ ऐसे है कि आप उसको किनारे नहीं कर सकते। अगर आपको जीवन में अच्छा करना है, उसको कैसे करके निभाना है वो सीखना है ना। अगर आप अफसर हैं, कोई कल को आईएएस बन गए, हमारे बहुत सी लड़कियां हैं जो आईएएस हैं, और हमारी ज़्यादातर लड़कियां अच्छा करती हैं और बड़ी बड़ी जगहों पे हैं। तो अगर आप बन गए कुछ, आप ही लेट आएंगे तो कैसे वर्कर टाइम पे आएगा? आप ही ठीक से तैयार साफ़ कपड़ों में नहीं आएंगे तो बेचारा माली क्यों आएगा साफ़ कपड़ों में? आप मुँह धो के नहीं आएंगे तो लड़की क्यों मुँह धो के आएगी? तो अपना पैमाना जो है ना, आप खुद सेट करते हैं और आपको देख के और सेट करते हैं। और ये जिस एज पे बच्चे हमें मिलते हैं वो बड़ी इम्प्रेशनेबल एज होती है। उसमें आप चाहे बच्चे को बना दें, चाहे आप उसको तोड़ दें। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए कॉलेज द्वारा क्या कुछ इनिशिएटिव समय समय पर लिए जा रहे हैं? हमारे तो रोज़मर्रा के दौर में है ना, जैसे हमारी असेंबलीज़ होती हैं जिसमें लोगों को बुलाया जाता है, उसमें खाली कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होता, उसमें नॉलेज एक्यूमुलेशन भी होता है। जैसे बहुत सी इलनेसेस हैं जो औरतों के ही से रिलेटेड होती हैं, तो वो सब इंट्रोड्यूस की जाती है ताकि लड़की जब यहाँ से निकले तो एक कॉन्फिडेंट और वेल ग्रूम्ड और अवेयर औरत बन के निकले। आप भी मैम काफ़ी समय से आईटी परिवार का हिस्सा रही हैं। एक्सपीरियंस की बात करें, कैसे एक्सपीरियंस है वो कृपया हमारे व्यूअर से शेयर करिए। मैं तो बहुत छोटी उम्र में आई थी, 24 साल की थी मैं, और अब मेरे को 50 साल हो गए यहाँ पे। तो एक हंसते खेलता बच्चा, जो बच्चा ही कहूँगी अपने आप को, जो आई। मैं वैसे ज़रा सख्त घर की हूँ जहाँ पे डिसिप्लिन पहले से था, तो मुझे उतना एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर फिर भी डिमांडिंग इंस्टीट्यूशन है ये। टाइम पे आइए, इम्तिहान दीजिए, कायदे से तैयार होके आइए, ऐसे ही लपड़ सपड़ नहीं। तो ये सब चीज़ें आदमी धीमे धीमे शुरू में थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, पर जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, लाइफ के लिए ये ज़रूरी है। एंड देन दे ईज़ यू आउट, बाद में हैबिट हो जाती है। अब जैसे हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं सब साड़ी पहने और जूड़ा बनाए, जिनके लंबे बाल हैं, जिनके छोटे हैं वो खुला रख सकते हैं। शुरू में थोड़ी परेशानी होती है, मगर फिर ऐसा कोई मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें मैम, जो इस कॉलेज आपका यादगार मोमेंट रहा हो? यादगार मोमेंट में तो रोज़ ही यादगार, क्या कहूँगी, यादगार कोई ऐसा पल जो आपको हमेशा याद रहा हो, या कोई ऐसा बच्चा जो आपको याद रहा हो? तो उस समय तो नहीं, मैं जब प्रिंसिपल बनी थी इस कॉलेज की तो मेरी एज 41.5 थी। तो उस समय तो जैसे हमारे जो चेयरमैन थे उन्होंने पूछा कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा अभी तो लग ही नहीं रहा कुछ।
अब मैं सोचती हूँ कैसे बना दिया उन्होंने मुझे इतनी छोटी उम्र में। तो दैट गेव मी अबाउट 20 years ऑफ प्रिंसिपलशिप, विच आई थिंक वॉज अ वेरी बिग रिस्क। अगर मैं बेकार निकल जाती तो क्या होता, मैं अक्सर सोचती हूँ। एक आखिरी अपील मैं चाहूँगा कि आप अपने तमाम छात्रों से करें। आज पावन पर भी बोलेंगे इसको, फाउंडर्स डे है आईटी कॉलेज का। जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो इस समय पढ़ रहे हैं आईटी कॉलेज में, उनसे क्या कुछ अपील करेंगी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ कामनाएं करेंगी? मैं अपने जवान लोगों को कहूँगी, बेहद मेहनत करो, बड़े बड़े ख्वाब देखो। उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई ईंट छोड़ो मत, हिलानी पड़े हिलाओ, मगर लड़ाई मत करो। ज़िंदगी की लड़ाई बिना लड़े लड़ी जाती है, और द पावर ऑफ नेगोशिएशन इज़ द बिगेस्ट पावर एनीबडी कैन हैव। अगर आप अपने थॉट्स को और अपने प्लान्स को नेगोशिएट करके पूरा कर सकें तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। देखिए दुनिया में आजकल लोग क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, फलाना देश फलाने से लड़ रहा है, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर नॉट फाइटिंग, नेगोशिएटिंग। सो वी हैव टू टीच आवर यंग पीपल दैट फाइटिंग इज़ नॉट द ओनली रोड, नेगोशिएशन इज़ अ बेटर वन। थैंक यू सो मच मैम। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईटी कॉलेज के प्रिंसिपल मैम हैं, हम बात कर लेते हैं इनसे। मैम, इमेज टुडे में बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। आज स्थापना दिवस मनाया गया, तमाम यहाँ के पुराने बच्चे भी आए हुए हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहेंगे आप? कैसे अपने पुराने दिनों को आप याद करती हैं जब आई थी आप? हम आए थे 1988 में एज अ लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। तब से लेकर अब तक हमारे 37 इयर्स हो गए हैं इस कॉलेज में। हमने एजुकेशन तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ली, लेकिन पूरा हमारा इंटायर लाइफ समझिए आप 37 इयर्स इस कॉलेज में बीते हैं, और हर लम्हा जो इस कॉलेज में बीता है वो हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है। और ये हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, जो अलमनाई हैं, वो हमारे पढ़ाए हुए हैं, बॉटनी पढ़ाया हमने, अब तो ये खुद प्रोफेसर्स हो गए हैं। तो हम इनको देख के, इनकी सक्सेस देखकर और सक्सेस के साथ इनकी डिसिप्लिन लाइफ देखकर हम बहुत खुश हैं कि जो कुछ हम लोगों ने सीखा अपनी फाउंडर से, उनके जो विचार थे और जो उनकी डेयरिंग लाइफ थी, जो हमने सीखा वो हमने इनमें इम्पार्ट करने की कोशिश करी, और आज हम देख रहे हैं कि वी आर सक्सेसफुल। वो वैल्यूज़ जो हम चाह रहे थे इनमें इम्पार्ट हो, वो उनके अंदर है, एंड दे आर अवेयर ऑफ देयर वर्क, देयर एथिक्स एंड डिसिप्लिन एंड देयर डे टू डे लाइफ। सो मैम, बहुत सारे बच्चे अभी भी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आईटी कॉलेज के बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, जो कि दिखता भी है साक्षात। तो आपकी तरफ से आज उन बच्चों को क्या मैसेज है? हमारा बस एक मैसेज है, आप डिसिप्लिन रहने के लिए आपको जब कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। जो भी आपको क्लासेस अलॉट करे हैं, हर क्लास अटेंड करिए। ईच एंड एवरी क्लास इज़ इम्पॉर्टेंट, ईच एंड एवरी टीचर इज़ इम्पॉर्टेंट, और हर दिन का काम हर दिन करना है आपको। पेंडिंग वर्क मत रखें। अगर आप ऐसा करेंगे देन वन डे यू विल फील दैट ओह आई लर्नड इट फ्रॉम IIT College, Isabella Thoman College, and I'm successful. This is my message for my students. Thank you. इस समय हम लखनऊ के एक बहुप्रसिद्ध संस्थान में खड़े हैं, आईटी कॉलेज में। इज़ाबेला थॉमन कॉलेज है, आज ये फाउंडर डे मना रहा है। हम बता दें कि इस कॉलेज में आप जब आएंगे तो बहुत ही ऐतिहासिक आपको मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और उतनी ही रिच हिस्ट्री भी है। 1870 में स्थापना हुई थी और आज के दिन ही हुई थी। आज ही के दिन के तौर पे, फाउंडर्स डे के तौर पे इसको मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो यहाँ की एलुमनाई हैं वो भी यहाँ पे आई। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मैं प्रोफेसर सुनीता कुमार। हाँ, आईटी कॉलेज से 91 में आई कंप्लीटेड माय बीएससी फ्रॉम आईटी कॉलेज। यस। और आज फाउंडर्स डे मनाया जा रहा है। आपने स्वयं यहाँ पढ़ाई करी और आज आप स्वयं प्रोफेसर हैं, पढ़ा रही हैं छात्रों को। अपनी जर्नी के बारे में या कुछ ऐसे मोमेंट हो आपके दौर के, वो ज़रा कुछ बताइए। यस, इन 19 यू कैन इमेजिन द टाइम व्हेन वी वर हियर। इस कॉलेज में हम एडमिशन जब लिया था, और आज का समय बहुत चेंज हो चुका है। वो समय था और आईटी कॉलेज था,
और था नहीं है, और जो यहाँ की लेगेसी है, ब्यूटी है, जो यहाँ का डिसिप्लिन था, वो सब हमारे अंदर बसा हुआ है। और जो यहाँ का जो मोटो है, वी रिसीव्स टू गिव, ये शायद कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर इतना इम्प्लांट हो गया कि वो आज हम जो भी जहाँ पर भी हैं वहाँ पर उस वक्त उस चीज़ों को याद करते हैं और उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो आईटी इज़ इनटू हर चीज़ में, हमारे हर काम, हर एक्शन, हर थॉट में आईटी है। हम कहीं पे भी गए हैं बट इट इज़ देयर, और लोग कहते भी हैं कि ये आईटी के हैं। तो ये वो ट्रेनिंग, वो जो हमने यहाँ सीखा, उसी का। अभी तक आपका अपनी जड़ों से जुड़ाव है? बिल्कुल, डेफिनेटली। लखनऊ में होने की वजह से तो और भी है, और आईटी को हम अपने से अलग कर ही नहीं सकते हैं। मैं नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ सोशियोलॉजी की। मैं वहाँ पे एक्स प्रिंसिपल भी रही, और जब भी मौका मिला है कोशिश ये की है कि जो हमने आईटी में सीखा, जो यहाँ पर है, वो वहाँ पर भी ले जाएं और कर पाएँ, वही डिलीवर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं आईटी का कितना रिच इतिहास है, वो आपको मैम की आंखों में झलक रहा होगा। यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम एक एक करके बात करने का प्रयास करते हैं। जो बातचीत का दौर है, क्योंकि जब पुराने कॉलेज में आप जाते हैं, आप जाते हैं, तो हम आमतौर पर जो अपने दोस्त हैं उनसे बातें होती हैं, पुरानी यादें डिस्कस होती हैं, पुरानी यादों पर चर्चा होती है। तो जाहिर सी बात है आज जब आना हुआ तो पुरानी यादों के साथ भी आना हुआ होगा। जी, क्या शुभ नाम है मैम आपका? हाँ, बताया नहीं, ये हमारी स्टूडेंट गवर्नमेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही हुई है। हाँ, तो ये तो एक बहुत बड़ा मोमेंट है। मैं इन सबको बुलाना चाह रही हूँ, मिलाओ, आओ। तो आप प्रेसिडेंट भी यहाँ पर रह चुके हैं? मैंने बहुत कुछ, मैम मैं 1996 अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, कब आप यहाँ थी, उस समय का दौर क्या था? मैं सच कहूँगी कि ये जो कॉलेज है, जिस मोटिव के साथ है और जिस मोटिव से हमारे फाउंडर ने इसको स्टार्ट किया था, आज जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी उस चीज़ को हमारे अंदर रखती है, हमें वो मौका देती है। तो आई रियली एन्जॉयड माई जर्नी। मैंने यहाँ आके लीडरशिप क्वालिटी सीखी, एक डेमोक्रेटिक लीडर बनी, स्टूडेंट गवर्नमेंट एसोसिएशन की, इतने बड़े स्टूडेंट प्रेस्टीजियस उसकी, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, काफ़ी स्कॉलरशिप्स मिली। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी टीचर्स को, क्योंकि उनके पास आके वापस ऐसा लगता है कि हम स्टूडेंट बन गए हैं और हमें एक शेल्टर मिल गया है। जो बाहर अकेले लड़ाइयाँ लड़ते हैं, आज उनके साथ रह के एक लगता है कि अपनेपन में, हाँ, बहुत अच्छा, वो बड़ा नॉस्टैल्जिक मूवमेंट है। और आप लोग से शेयर करना, मतलब ऐसा लग रहा है कि वी आर बैक विद आवर टीचर्स। आई एम रियली वेरी हैप्पी। वापस से बचपने में आ गए, कॉलेज के अंदर आते? वापस में अपने कॉलेज में आ गई अपने टीचर्स के बीच, वही इमलीपना, वही हमारे ट्रेडिशंस, और हमारे टीचर्स ही हैं जो इसे दिन पे दिन, जनरेशन टू जनरेशन आगे दे रहे हैं, उसी शिद्दत के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ। तो माय ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स माय टीचर्स। आने वाले 5 तारीख को हम शिक्षक दिवस मनाएंगे भी, बट उसके पहले मैं अपने सारे शिक्षकों को आज यहाँ से ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ कि आज जो भी हम हैं, जो भी मैंने समाज में अपनी पोजीशन बनाई है एज अ हेड ऑफ डाइटेटिक्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपकी टीचिंग्स हैं जो मुझे हमेशा मेरे हर कार्य में हेल्प करती हैं। थैंक यू, थैंक यू। देख सकते हैं जो आंखों में चमक है वो बयां कर रही है अपना इतिहास। और जी, आपका क्या नाम है? मैं सीमा जोशी, मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में हेड हूँ यहाँ पे, और यहाँ स्टूडेंट गवर्नमेंट एसोसिएशन की एडवाइज़र भी हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे 1990 से ज्वाइन किया है, तो तकरीबन 34 साल हो गए हैं। और इस 34 साल में मैं हर साल इतनी बच्चों के साथ रहती हूँ, तो सब वही, जैसे चेहरे बदलते रहते, पर बचपना वही है उनका, उन्हीं के साथ रह रहे हैं। कुछ वैल्यू सिस्टम में चेंज है, पर यहाँ का कॉलेज का डिसिप्लिन उनको वापस वही चीज़ें जो है दोबारा से देने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए मुझे बच्चों के साथ रहने में बहुत एक ऐसा फील होता है। मैं नेक्स्ट ईयर रिटायर हो जाऊँगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन बच्चों के साथ मेरे एज इन्हीं के साथ मिल गई है। हम उम्र हो गए, हम उम्र हो गए। मिस तो करेंगी, अब साल भर बाद रिटायरमेंट है बहुत ना। तो ये हमारा पूरा यही कैबिनेट है जो कि बच्चे ये पूरे सारे प्रोग्राम्स करते हैं यहाँ पे, उनमें हेल्प करते हैं। तो पुराना एलमना जो यहाँ पे आता है, जो आगे बढ़ा है, वो भी लीडरशिप क्वालिटी यहीं से लेके जाता है, जो कि आपने अभी हमारे एलमना से इंटरव्यू करते हुए भी देखा होगा। तो देखें, ये नए छात्र हैं, नए युग के नए छात्र हैं, इनसे बात हो जाए। जी, क्या नाम है आपका?
Sir, my name is Kavaljeet Kaur Walia and I am the cultural chairperson of this IT college, and I am very grateful that I am working with Dr. Joshi ma'am, and she has been guiding us, and it's a very good opportunity to serve our college being an SGA member. And आज इतने सारे एलुमनाई यहाँ पर आए और मंच के ऊपर से अपने दौर की बातें भी सुनाई गई, बताई गई। वो जब बातें आप सुन रही थी तो वो प्राउड मोमेंट था आपके लिए कि हम ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे पढ़ के लोग इतने बड़े बड़े स्थान में पहुँचे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुँचे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूले। it has always been a proud moment to see our alumni. Last year also when I saw them, I was greatly impressed. Like ma'am said that she was passed out in 2003 from this college, and it has been 21 years. So it's very good to know that the students of our college have reached such great positions, and they inspire us that we will also be one day we will also be at their position. And जोश आता है उनसे मिल करके देख के? बहुत ज़्यादा जोश आता है। क्या नाम है? Sir, my name is Akarshi Tiwari. I am the president of SGA. Yes, sir. जी। तो मतलब 30-40 साल बाद आप भी जैसे हमने भी इंटरव्यू किया वैसे ही लौटेंगे? या आपकी ब्लेसिंग से ज़रूर होगा ये। बिल्कुल, आशीर्वाद तो खैर पूरा है छोटी बहन के नाते आपको। आप अपना कुछ अनुभव बताएं, जब आप एलुमनाई से मिलते हैं तो उनसे क्या कुछ सीखने को मिलता है? सर, आई लर्न अ वेरी मच थिंग्स कि दे आर सो मोटिवेटेड। उन्होंने आज बताया उनका लाइफ एक्सपीरियंस सुन के इतना अच्छा लगा कि हमें लगा कि हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। दे सच अ गुड सर, वी आर वेरी हैप्पी टू मीट देम। बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर, और वो इतनी चीज़ें बताते हैं हमको और सीखने का मन करता है कि अरे ये तो चीज़ें रह गई, ये चीज़ें तो रह गई, अरे हमें और करना है, हमें और करना है। दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर। जी, तो देखिए चेहरे पे सबके मुस्कान है कि करके और बात हो जाए। क्या नाम है आपका? My name is Ariba Asim and I am a secretary of SGA. सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, दबदबा भाई सबका है, दबदबा फुल है पूरा। खैर, तो आपने क्या कुछ सीखा आज अलमना से? अपने आप को डेडिकेट करना, और जैसे हमारा मोटो वी रिसीव टू गिव, यहाँ पर सीख के मैं चाहती हूँ मैं भी वापस आऊँ और कॉलेज को दूँ। अच्छा, जब एलुमनाइज को देखते होंगे तो ये तो मन सबका ही होता होगा कि कभी हम भी लौटेंगे, थोड़ी उम्र ज़्यादा हो चुकी होगी पर एक पद पे होंगे, लौटेंगे, यहीं से मास्टर देंगे। ऐसा किसका किसका मन करता है? ज़रा हाथ उठाना है एक बार। देखिए सभी का मन करता है ऐसा तो करने का। क्या जी है, वो तो लीडर्स का ही ग्रुप है ना। इनकी तो सिर्फ यहाँ आईटी कॉलेज में ग्रूमिंग हो रही है, जो कि इजाबेला थोबन की ख्वाहिश थी कि वीमेन शुड बी अ लीडर, देन ओनली दे कैन लीड द पाथ। लीडर तो देखिए तैयारी हो रहे हैं। हाँ, नए हैं, और वो हैं जो कि बहुत मोटिवेटेड हैं फॉर द सोसाइटी, है ना। एनर्जी तो मैंने देखा सबके पास बहुत ज़्यादा। हाउ द जोश? तो देखिए जोश बड़ा हाई है। क्या नाम है जी आपका? मंजरी। सर, बहुत कुछ सीखने को, लाइक अभी 3rd ईयर है तो बहुत कुछ मैंने सीखा यहाँ पे। एक डिसिप्लिन और चीज़ों को कैसे अपने आप अच्छे से पेशेंटली हैंडल करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। क्या है, बहुत कुछ है और अभी बहुत कुछ सीखने को भी बाकी सर, बहुत कुछ बाकी है सीखने। मेरा नाम पलक श्रीवास्तव है और मेरा भी लास्ट ईयर है। तो जैसा कि आज हम लोग को सबको बताया गया है, तो हम लोग भी यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीख करके जा रहे हैं। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरे एक्सपीरियंस, सब अच्छी चीज़ें हम लोग सीख करके जा रहे हैं। बाकी आगे लाइफ में अभी हम लोग को और भी सीखना है। तो अभी तो ये तो शुरुआत है बस। अभी तो पार्टी शुरू हुई। अभी तो शुरू हुई है। तो देखिए दबदबा गैंग है पूरा हमारे साथ में, और कुछ लोग डर भी रहे हैं, थोड़ा घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। जी क्यों इतना अबाउट? थोड़ा सा डरी हुई है? क्या बात? नहीं, डर नहीं। कैमरा शाई होंगे। हाँ। तो फिर सेल्फी नहीं लेती होंगी आप लोग? पूछिए इनसे। आप बताइए, दोस्त है ना। एक्चुअली मुझे भी अभी कुछ दिन हुआ है SGA ज्वाइन करे, तो आई गॉट टू न्यू कि ये लोग ऐसे वर्क करते हैं। हमारा एक टीम वर्क होता है, और हमारे जो सब ग्रुप्स हैं वो दे आर लाइक हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, सब बहुत अच्छे हैं देर। अच्छा, इस ग्रुप में आकर के आपको जो टीम वर्क है, कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे प्लानिंग होती है, सब कुछ सीखने को मिला? जी, यूनिटी होती है, आपके वर्क डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, सबकी अलग अलग पोस्ट्स हैं, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट हमारा रन कर रहा है। मेरे को भी लाइक आई एम अ फ्रेशर, सो अभी तो आई हैव टेकन पार्ट आई गेस अ फ्यू वीक्स बिफोर ओनली, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द SGA ड्यूटीज़ एंड SCM ड्यूटीज़, दे आर रियली प्रिसाइज एंड दे आर रियली कट टू पॉइंट। हमें बताया जाता है हमें ये काम है, हमें सारे प्रोग्राम्स को एकदम ओरिएंटेशन के साथ एकदम कंडक्ट एक होता है, टू द पॉइंट होना चाहिए, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं। हाँ, एक्यूरेट, क्योंकि आई गेस ये हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि टीचर्स की भी इज्जत होती है, हमारे सुपरवाइजर्स की भी होती है, एंड एज वेल एज तांजी मैम के एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेसिडेंट मैम के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, ये हमारी ड्यूटी है।
मुझे एक बात बताइए, आज इतने सारे एलुमनाई यहाँ पर आए हुए थे, भाषण दे रहे थे एक के बाद एक, बहुत अनुभव अपना बता रहे थे। उस अनुभव से क्या सीखने को मिला? गौरवान्वित फील हो रहा है क्या, और क्या कुछ सीखने को मिला? सबसे पहले तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था कि मतलब आईटी के स्टूडेंट्स इतने दूर जा चुके हैं, वो इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, वो इतने लोगों को सिखा रहे हैं कुछ, और यहाँ पे आकर के उन्होंने अपना हमें बताया सब कुछ, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मनाया जा रहा, आपको एक सक्सेस आपने यहाँ से पढ़ाई करके पाई है, क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ इस मौके पर आई हैं? आईटी कॉलेज हमारे दिल में बसा हुआ है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ऊपर देखिए वो जो पिजन्स हैं, हाँ। मैं इनको बोलती हूँ आईटी कॉलेज के पेरेनियल पिजन्स। जब स्टूडेंट्स थी तब भी ये पिजन्स थे, आजकल एलुमनाई होके आती हूँ तब भी पिजन्स हैं। कभी कभी लगता है कि इज़ाबेला थोबन मैम का जो सोल है वो शायद किसी एक पिजन में है, जो हम लोग को देख रहा है, हमें ब्लेस कर रहा है। वी रिसीव टू गिव एंड आई एम extremely honored today, and I pass on the legacy that I have received. God bless. Thank you. हमारे साथ वो सारे बच्चे अभी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही बाखूबी और बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस अपनी दी है। क्या नाम है आपका? अनन्या। बहुत सुंदर आज आपने स्थापना दिवस पर थैंक यू मैम परफॉर्म किया है। कितना अच्छा लगता है आईटी कॉलेज जहाँ जिसका नाम है पूरे दुनिया भर में? मैम बहुत ही अच्छा लगता है। आईटी कॉलेज बहुत ही अच्छा एक्सपोजर अपने सारे बच्चों को देता है। हमारे साथ हमारी टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं, और ये जो हमने प्ले तैयार करा है दिस इज़ ओनली अ 10 डे वर्क, और हमने 10 डेज़ में इसको आज परफॉर्म किया है। तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दैट वी रिसीव हियर एंड द हार्ड वर्क दैट आवर टीचर्स पुट इन अस। क्या कहेंगे आप? हम बस यही कहेंगे कि हमारे टीचर्स ने मतलब बहुत ही मेहनत करी, और ये सब कुछ सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट द टीचर्स बट द स्टूडेंट्स एज वेल, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, और उसकी वजह से ही ये परफॉर्मेंस और आज का एक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम और भी हैं, आ जाइए आप लोग, क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग की टीचर्स ने हमारे संग, जैसे कि अनन्या ने बोला, बहुत ही शी सेड ट्रूली हमारी टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, और सारा एफर्ट्स आज आप लोगों ने देखा है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और बस यही है। कैसा लगा आपको? हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एंड हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। स्पेशली हमारी टीचर्स ने हमारे साथ जो हार्ड वर्क किया है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उन्हें अपना पूरा जी जान लगा दिया हमारे साथ, एंड वी ऑल्सो डिड आवर बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम और भी हैं हमारे साथ, हम इनसे भी बात करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरा पहला स्किट था जो कि मुझे आईटी कॉलेज में करने को मिला, और हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हमारे साथ मेहनत किए हैं, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज भी एक बेहद अहम कार्यक्रम फाउंडेशन डे, यानी कि जिस दिन न्यू निर्माण हुआ था, जिस दिन निर्मित हुआ था ये कॉलेज सन 1870 में, उस दिन के तौर पे मनाया जा रहा है। एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही गौरवशाली इतिहास आईटी कॉलेज अपने अंदर समेटे हुए हैं, और जनरेशन बाय जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की तरफ यही गौरव जो है वो ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है। यही मोरल्स, यही एथिक्स, सब कुछ ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, और समाज में एक अच्छा जो माहौल है वो बनाया जा रहा है। और साफ तौर से अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को ही आगे बढ़ाने का, उन्हें एम्पावर करने का जो उद्देश्य था वो इज़ाबेला थॉमन का था, और उस उद्देश्य को कहीं ना कहीं आईटी कॉलेज अभी भी पूरी तरीके से फुलफिल करता नज़र आ रहा है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।